Okay, so here is an example, a complete example that how a fuzzy rule based system works. So let's say कि यहाँ पे एक problem दी हुई है. I'll give you a minute to go through this problem. So the problem description is that driving on a road approached by a vehicle towards an intersection. So there is a vehicle that is coming and there is an intersection there. So how do you control your brakes depending upon the distance to the point of intersection and the speed of the vehicle? So the inputs are the point of intersection, कितना दूर है point of intersection, और speed of the vehicle कितनी है, और वहाँ से आपने जो आउटपुट निकालनी है वो ये है कि आपने ब्रेक्स को कंट्रोल कैसे करना. So this is a simple example और इसके 4 rules आपके पास हैं. And these rules have been given by the experts. यहाँ आपने खुद derive किए हैं. If the distance to intersection DTI is far. And so what is far? Far is the linguistic description of distance. And the speed is low. So speed की linguistic description slow है. Then apply gentle brakes. So brake control gently आपने apply करनी. That is rule number 1. Rule number 2 जो है, if DTI is near and speed is slow, then apply medium brakes. Rule number 3 ये है कि if DTI is far and speed is fast, apply medium brakes. And if DTI is near and speed is fast, then apply high brakes. So these are the 4 rules that are given to you. So now, given that the distance to intersection is 0.4 normalized units, whatever units are there, लेकिन जो distance है वो 0.4 normalized units है, और speed is 0.7 normalized units, how much should be the pressure on the brakes in normalized units? ठीक है, तो आपके पास एक इनपुट दी हुई है जो कि डिस्टेंस DTI है which is 0.4, स्पीड है which is 0.7, आपने ब्रेक्स की वैल्यूज निकाली, राइट? So what would be the first step जी इसके अंदर? The first step would be जी Awais, are you there? Yes, sir. Okay. What do you think should be the first step? सर इनकी वैल्यूज को फजीफिकेशन यानी कि करेंगे. Fuzzification process. So the first thing is fuzzification process. So for that, what will we do? Finding out the fuzzification. एक मेरे पास value है 0.4 जो कि DTI distance है, DTI distance है, और एक मेरे पास value 0.7 है which is speed, and this is the rule set that we have got. ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए था, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है इसमें, वो ये है कि आपको मेंबरशिप फंक्शंस ड्रॉ करने चाहिए या मेंबरशिप फंक्शंस बताने चाहिए थे कि डिस्टेंस टू इंटरसेक्शन के लिए कितने मेंबरशिप फंक्शंस होंगे. एनीवन? 2 मेंबरशिप फंक्शन. बिल्कुल ठीक है. आयना सान, 2 मेंबरशिप फंक्शंस कौन कौन से होंगे? Sir, fast and slow. Fast. Yeah. So डिस्टेंस टू इंटरसेक्शन में आपके पास फार है Far and एंड near होंगे. नियर है, ठीक है ना. तो DTI में दो पॉसिबल लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्टर्स हैं, फार एंड नियर, और स्पीड के अंदर स्लो एंड फास्ट, ठीक है जी, और ब्रेक्स के लिए आपके पास मीडियम और हाई और एंड जेंटल, ठीक है. तो ब्रेक्स के लिए 3 मेंबरशिप फंक्शंस हैं, DTI के लिए 2 मेंबरशिप फंक्शंस हैं, और स्पीड के लिए भी 2 मेंबरशिप फंक्शंस हैं, राइट. तो सबसे पहले आपने ये देखना कि 0.4 डिस्टेंस जो है क्या वो फार है या नियर है, और फार में उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है और नियर में उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है. और फिर इसी तरह से आपने स्पीड के लिए देखना है कि स्पीड 0.7 है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू स्लो में आ रही है या फास्ट में आ रही है या दोनों में आ रही है. और फिर वहां से आपने ये निकालना है कि मेंबरशिप वैल्यू फॉर ब्रेक्स क्या होंगी, ठीक है.
So that would be the defuzzification process towards the end. So you fuzzify the antecedent variable, identify के कौन से rules आपने fire करने, obtain the consequent membership functions, and then defuzzify. Okay, and so let's just start with this process. So ये आपके पास let's say कि मैंने अपना जो knowledge base है उसके अंदर ये मैंने पहले रखा हुआ. So this here is representing distance to intersection. Distance to intersection. This here is representing speed. This here is representing your output, brakes वाली जो बात है, right? So अगर आपके पास 0.4 है distance to intersection, तो 0.4 distance to intersection would be somewhere here, right? So it would have, if I draw a vertical line here, so it would cut near at this point and it would cut far at this point. तो फार में भी एक मेंबरशिप वैल्यू होगी और नियर में भी एक मेंबरशिप वैल्यू होगी. स्पीड की वैल्यू 0.7 है, 0.7 वुड बी समवेयर हियर. तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इट वुड हैव अ मेंबरशिप वैल्यू इन स्लो एज वेल एज इन फास्ट, दोनों में इसकी मेंबरशिप वैल्यू. ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि ये मेंबरशिप वैल्यूज निकाली जाए. ठीक है, मेंबरशिप वैल्यूज आप निकालेंगे. तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस टेलिंग मी? दिस इज टेलिंग मी कि मेंबरशिप वैल्यू फार भी है और मेंबरशिप वैल्यू में नियर भी है. ठीक है, तो नियर की भी मेंबरशिप वैल्यू मेरे पास आ रही है नॉन जीरो और फार में भी मेंबरशिप वैल्यू आ रही है विच इज नॉन जीरो. और स्पीड के केस में भी स्लो और फास्ट दोनों में मेंबरशिप वैल्यूज आ रही है. तो ये जो रूल सेट मैंने आपको दिया हुआ है इसमें से कोई बता सकता है कि कौन कौन से रूल्स फायर होंगे? रूल फायरिंग का मतलब ये है कि जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. एंड रिमेंबर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फजी हियर, तो जिन जिन की मेंबरशिप वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिन जिन लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्टर्स की मेंबरशिप वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो रूल्स फायर हो जाए. ऑल फोर जी, ऑल फोर विल फायर. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पहले रूल में क्या है, DTI फार है और फार की मेंबरशिप वैल्यू एग्जिस्ट करती है. और फिर स्पीड आपके पास स्लो है और स्लो की भी मेंबरशिप वैल्यू एग्जिस्ट करती है. तो इसका मतलब रूल नंबर 1 भी फायर करेगा क्योंकि DTI की भी एक मेंबरशिप वैल्यू आपको मिल गई है और स्पीड स्लो की भी मेंबरशिप वैल्यू आपको मिल गई. रूल नंबर 2 भी फायर करेगा क्योंकि नियर की भी मेंबरशिप वैल्यू DTI में है और स्पीड की भी मेंबरशिप वैल्यू स्लो की भी है. इसी तरह थर्ड रूल और फोर्थ रूल, ये चारों रूल्स की जो कंडीशंस हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उनकी मेंबरशिप वैल्यूज आपके पास अवेलेबल. ऑल दीज फोर रूल्स विल फायर. ठीक है, सो लेट्स सी कि ये रूल फायरिंग कैसे होगी. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज कि आपने मेंबरशिप वैल्यूज निकालनी है. और वो मेंबरशिप वैल्यूज एज आई टोल्ड यू, मेंबरशिप वैल्यूज निकालने का जो तरीका है वो ये है कि 0.4 के अगेंस्ट आपने एक अल्फा कट, सॉरी 0.4 के अगेंस्ट आपने वैल्यू के अगेंस्ट आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे भी किया और फिर आपने इनकी मेंबरशिप वैल्यूज निकाली. ठीक है जी, सो मेंबरशिप वैल्यू, सो रूल नंबर 1 फायर करता है, राइट. रूल नंबर 2 भी फायर करता है, रूल नंबर 3 भी फायर करता है, रूल नंबर 4 भी फायर करता है, राइट. सो अब अगर आप रूल नंबर 1 फायर करते हैं, व्हाट वुड दिस मीन? तो आपने इन्फ्रेंसिंग फजीफिकेशन कर लिया. द नेक्स्ट स्टेप इज द इन्फ्रेंसिंग प्रोसेस. इन्फ्रेंसिंग में क्या करते थे? आपने ये देखना कि आपकी इनपुट्स कैसे कंबाइन हो रही हैं. The inputs are being combined with the help of what type of an operator? AND operator, AND logical operator आपके पास है, right? AND operator. तो AND के थ्रू आप इसको combine करें. So membership value of DTI in far and the membership value of speed in slow, इन दोनों को आपने combine करना है through the AND operator. That means कि इन दोनों की values को लें और minimum निकालें, right?
सो इन चारों रूल्स के लिए आपने एग्जैक्टली यही काम करना। और रूल नंबर 1 जब फायर आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों की वैल्यूज लें, उसका मिनिमम लें और उस मिनिमम के ऊपर एक अल्फा कट लगा दें हीटिंग के ऊपर, सॉरी ब्रेक्स के ऊपर। ठीक है, ओके। सो लेट मी जस्ट शो यू कि रूल नंबर 1 जब फायर करता है तो क्या होगा। सो दिस इज हाउ रूल नंबर 1 विल गेट फायर। तो आपके पास 0.4 के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 0.7 के अगेंस्ट एक वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। इन इन दोनों वैल्यूज में से आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है और उसका आपने एक अल्फा कट लगा देना है ऑन योर आउटपुट। और अल्फा कट आप बेसिकली दिस वुड बी द अल्फा कट विच वुड बी अप्लाइड। ये मीडियम में क्यों नहीं एक्सटेंड हो रहा और हाई में क्यों नहीं एक्सटेंड हो रहा, ये अल्फा कट? द रीजन इज कि आपका जो रूल है वो ये बता रहा है कि ब्रेक्स आपने, रूल नंबर 1 ये बता रहा है कि जेंटल ब्रेक्स अप्लाई करनी है, तो अल्फा कट आपने जेंटल के ऊपर ही लगाना, मीडियम के ऊपर आप अल्फा कट नहीं लगेगा, क्योंकि आपका रूल नंबर 1 ये बता ही नहीं रहा कि मीडियम आउटपुट होगी या नहीं होगी। आउटपुट आपका रूल नंबर 1 ये बता रहा है कि मीडियम आउटपुट नहीं होगी या हाई आउटपुट नहीं होगी, आपकी आउटपुट जेंटल है। तो आपका ये जो अल्फा कट लगेगा आफ्टर कंबाइनिंग द DTI एंड स्पीड टुगेदर, अल्फा कट जेंटल के ऊपर लगेगा। दैट इज व्हाट रूल नंबर 1 इज टेलिंग यू। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, ओके ग्रेट। तो इसी तरह से आपने रूल नंबर 2 को भी देखना है और इसका अल्फा कट आपका जो लगेगा वो मीडियम के ऊपर आएगा। रूल नंबर 3 एंड 4, 3 का मीडियम पे लगेगा और 4th का हाई के ऊपर। तो अगर मैं इन तमाम रूल्स को कंबाइन कर लूँ, एक ही स्लाइड पे शो करूँ, तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। रूल नंबर 1 का जो ग्रे एरिया दैट इज द आउटपुट, रूल नंबर 2 का ग्रे एरिया दैट इज द आउटपुट, रूल नंबर 3 का ग्रे एरिया और रूल नंबर 4 का ग्रे एरिया। The next thing is कि I'll combine all these rules together to form a common representation, and this is the common representation of all these 4 different rules. और ये ग्रे एरिया जो मेरे पास आ रहा है that is your fuzzified output। और फिर आप इसको थ्रू सेंट्रॉइड मेथड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, आप एक सिंगल पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो योर हीटिंग लेवल्स वुड बी 0.68 0.68 आपने इसको डीफजीफाई करके निकाला। और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आई विल गो ओवर दोज मेथड्स probably next time। ठीक है जी। So this would end our discussion for today, and